So within text completion, you'll get typically 1 blank, 2 blanks, and 3 blanks questions, right? This is the format, and for any of these blanks, you will be choosing just one option, right? 1 blank होगा तो आपको one ही option choose करना है. 2 blank है आपका question में, तो आपको 2 blank के लिए 2 respective choices दी होंगी, उसमें से आपको 2 option select करने रहेंगे. 3 blanks में for every blank there will be different set of choices, and from that you'll be choosing one option for each blank. Sentence equivalence, how it is different is that it will just have one blank question. जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. Similarly, in exam, you'll have just one blank question, and one blank में आपको कितने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं? 2 ऑप्शंस. ठीक है, मैं इसलिए इसको बहुत कैटेगरिकली बता रहा हूँ आपको, बिकॉज इन पास्ट आई हैव सीन स्टूडेंट्स दैट इन हरी दे हैव मिस्ड द डिटेल एंड दे हैव अटेम्प्टेड सेंटेंस इक्विवेलेंस क्वेश्चंस एज टेक्स्ट कंप्लीशन क्वेश्चन, which could be a blunder, right? क्योंकि यहाँ 2 ऑप्शंस फिट करने रहते हैं और टेक्स्ट कंप्लीशन के 1 ब्लैंक क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, राइट? सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहेंगे आपके सेंटेंस इक्विवेलेंस में, and in most of the cases there'll be synonyms. As I said, 90% of the times वो synonyms रहेंगे. 10% ऐसे cases हो सकते हैं जहाँ पे unrelated word आपके blank पे जा सकते हैं. We'll come across those options also, and I'll let you know how that works. So first, let's see this question. So a typical strategy which I have been telling it to all students is that even before attempting sentence equivalence question, even before reading the question stem, try to identify pair of options which are there. How many pairs you can identify? If I see options from, हाँ ये एक और अंतर आप ध्यान रखिएगा कि sentence equivalence में 6 options are there. In text completion, 1 blank question जिसमें एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, उसमें आपके 5 ऑप्शंस रहते हैं. ये भी एक डिफरेंस है जिससे आप ध्यान रख सकते हैं. इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इन हरी, यू कैन रिमेंबर इट बाय दिस मेथड कि टेक्स्ट कंप्लीशन 1 ब्लैंक पे 5 ऑप्शंस रहते हैं. सेंटेंस इक्विवेलेंस में आपके 1 ब्लैंक पे 6 ऑप्शंस हैं, क्योंकि सेंटेंस इक्विवेलेंस में आपको 1 पेयर आइडेंटिफाई करने हैं. दैट मींस 2 ऑप्शंस. सो ए टू एफ में हाउ मेनी वर्ड्स यू थिंक आर रिलेटेड? कितने लोग समझ पा रहे हैं? इशिका सेज A and D are related, which is limited and circumscribed, and she says C and F are related, which is undiscovered and hidden. Good Niharika. Sorry, Ishika. Samriddhi says limited and circumscribed are related. Rajat says same. Devika says C and F. So you guys have rightly identified that A, limited or circumscribed रिलेटेड होते हैं. मैंने आपको सर्कमस्क्राइब का मीनिंग पहले बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे. सो सर्कमस्क्राइब्ड इज किसी चीज को लिमिट कर देना, राइट? सर्कम इज फॉर सर्कुलर, ठीक है? सर्कुलर में किसी को स्क्राइब कर देना, दैट मीन्स आप उनके लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जिससे वो बाहर नहीं जा सकते हैं. सो यू आर पुटिंग अप अ कंस्ट्रेंट ऑन समबडी, यू आर लिमिटिंग देयर मूवमेंट. सो सर्कमस्क्राइब्ड एंड लिमिटेड कैन बी पेयर, व्हिच इज ट्रू. पार्शियल का आई डोंट सी अ पेयर विद इन दिस, राइट? Undiscovered के लिए I can see a pair which is hidden. Something is hidden, it is undiscovered. Prosaic, which is what? Prosaic is something boring, dull, mundane, boring. बिल्कुल सही समृद्धि, निहारिका, देविका. It is बिल्कुल सही रहा. So it is something dull and boring to look at. So prosaic और partial में कोई relationship establish नहीं हो पा रही है. So in this case I have 2 pairs, which is limited and circumscribed, undiscovered and hidden. So I'll just have to read the context, the sentence, to identify what I can put up within the blank. So overlarge, uneven, and ultimately disappointing, the retrospective exhibition seems too much like special pleading for a forgotten painter of real but dash talents. अब यहाँ पे आपको टोन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस में. यहीं पे आपका सारा कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है प्ले में. How many of you think that the person who has written this sentence is appreciating the talents of this painter, or he is criticizing the talents? Rajat says it's written in negative tone. Samriddhi says criticizing. Devika says criticize. Anshul says criticize. Princey says negative, which is correct. It's written in negative tone. So obviously the person who has written this sentence is not appreciating the talents of this painter, right? So if I go with undiscovered and hidden talents, so basically I'll be making it a positive tone, which is not the case. So I cannot use
C and F, I can go with option A, which is limited and circumscribed. Yes, Ayushi, it should be A. According to Collins Dictionary, verb, if someone's power, it should be A and D. ठीक है, इजी था क्वेश्चन, सिर्फ टोन आइडेंटिफाई करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इक्विवेलेंस बहुत स्कोरिंग आपको लगेगा, क्योंकि वर्ड्स भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड पेयर, आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन सा पेयर जा सकता है। इस केस में हमने 2 पेयर आइडेंटिफाई किए है, जिसमें से हम देख रहे थे कौन सा पेयर यहाँ पे जा सकता है। सो वी हैव फाउंड दैट लिमिटेड एंड circumscribed can go in the context. Let's go to next question. ये अभी कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। विल बी सॉल्विंग good comprehensive practice questions in which I'll take some easy, most difficult questions that you'll see on the examination. For now, we are just seeing some sample questions to start with so that you get familiar with the section, and then we can attempt that grouping strategy. Again, even before reading the question, if you can try to identify relation between the options. Yashvi says C and F are related. Ayushi says C and F are related. Rajat, C and F. Samriddhi also says frugality and stinginess are related. Right. Stingy, frugality. What about the other words? और किसी में आपको relation दिख रहा है? Intolerance, illiberality, diffidence. अच्छा, C and F people are saying, ठीक है. Frugality and thrifty पे people are saying, and some are also pointing to A and C. तो फ्रूगैलिटी हमें याद है कि फ्रूगैलिटी थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, राइट, एंड स्टिंजी नेगेटिव वर्ड है. डू यू रिमेंबर दैट? आई टोल्ड यू, ऑल्दो दे आर गिवन एज सिनोनिम्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट फ्रूगल का मतलब होता है जो वाइजली स्पेंड करे अपना मनी, राइट. समबडी हु इज स्पेंडिंग मनी वाइजली इज कॉल्ड फ्रूगल, अ वाइज स्पेंडर. ठीक है, आपके पास 4 हॉस्पिटल के ऑप्शंस हैं एंड यू आर चूजिंग द ऑप्शन व्हिच इज मोस्ट इकोनॉमिकल वन. So in this case, you will not be called stingy. You will be called frugal, somebody who is very wise with spending money. Stingy is somebody who is not even ready to go to hospital because he has to spend some money. So that makes you stingy. Samriddhi is asking, do we have to be careful about derivatives? What kind of derivatives, Samriddhi? If the terms have been derived from some place. I did not get it. Like here, thrift can't fill in the blank. It should be thriftiness. Her thrift. Thrift can be used as an adjective. You're right that thriftiness is one of the adjective, but thrift का एक adjective form भी होता है. So we are calling her, उसकी quality को हम call off कर रहे हैं, समृद्धि. ठीक है? So thrift can be used as adjective. So her thrift I can call it, right? Her innocence, her honesty, all these are adjective. Similarly, I can use her thrift. So in this case, frugality and thrift can be a better pair compared to stinginess. Why we are keeping stingy out? Because stingy यानी कंजूसी होता है, जो कि एक नेगेटिव वर्ड पे चला जाएगा. और जो थोड़े से पॉजिटिव हैं, फ्रूगल और थ्रिफ्ट हो सकते हैं. डिफिडेंस का किसी और से रिलेशन नहीं है, ठीक है. इंटॉलरेंस और इलिबरल ये फिर भी रिलेटेड है, ठीक है. समथिंग इज इंटॉलरेंट, वी कैन कॉल दैट एज इलिबरल. दैट इज ऑल्सो फाइन. लेट्स लुक एट द कंटेक्स्ट. नहीं, मत सोचना समृद्धि इतना उस टाइम पे. अगर आपको पेयर आइडेंटिफाई हो रहा है तो गो विद दैट कॉल, ठीक है. वो मत देखो कि इस कंटेक्स्ट में एनी एसएस आ सकता है कि उसके बिना आ सकता है. हाँ, ठीक है, बिकॉज उन्होंने इतना केयरफुली सोच के क्वेश्चन क्राफ्ट किया है कि इतनी चीज पे कोई ना पकड़ पाए, राइट. जैसे हेल्थ होता है एंड हेल्दी होता है. सो ऑब्वियसली देव प्रायर, उन्होंने क्वेश्चन को बनाने से पहले ये चीज सोच ली होगी कि वहां पे ऑप्शंस में हम हेल्थ रखें कि हेल्दी रखें, लुकिंग एट द कंटेक्स्ट, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएगा किसी के लिए आइडेंटिफाई करना, राइट. बिकॉज हेल्दी इज एन एडजेक्टिव, हेल्थ बिकम्स नाउन. तो नाउन फॉर्म लेना है कि एडजेक्टिव फॉर्म लेना है, ये सेंटेंस पढ़ के आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा.
आ जाते हैं हम वापस क्वेश्चन पे. Her dash should not be confused with miserliness. As long as I have known her, she has always been willing to assist those who are in need. So they are already calling her that, within the sentence they are saying that do not confuse her to be miser. Miser is very close to stingy, right? तो हम लोग स्टिंजी वर्ड तो यहाँ नहीं उठाएंगे. हर स्टिंजीनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद माइजर, बिकॉज ये बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट बन जाएगा कि उसकी कंजूसी को कंजूसी ना समझो, राइट? सो आइडियली इट शुड बी सी एंड एफ, कि वो जो कम पैसा खर्चा करती है, विच इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रूगल एंड थ्रिफ्ट, द क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग मनी वाइजली, सोच समझ के करना. उसके लिए हम जरूर बोल सकते हैं कि वो अगर मनी अपना वाइजली स्पेंड कर रही है तो डू नॉट ट्रीट दैट एज miserliness. As long as I've known her, she has always been willing to assist those who are in need. Agree on this? किसी को प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, या नहीं समझ आए हो तो पूछ सकते हैं. For the people who are not aware with these words, in few classes you will all become aware with the words. So do not worry if you have started your sessions recently. So do not worry that you are not familiar with the vocabulary of words. In few classes you will be able to identify these words. बल्कि जो आज की हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स ही यूज करेंगे, तो आपको बहुत इजीली वो कैटेगरी वाइज आइडेंटिफाई हो जाएगा ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स में. ठीक है. डिफिडेंस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. रजत, जब प्रैक्टिस में आओगे तो तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि कई बार मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन स्टेम को समझ नहीं पाते हैं, और उस केस में अगर आपके पास पेयर आ जाते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए चीज. ठीक है. यूजुअली मैं टेक्स्ट कंप्लीशन में तो वही स्ट्रेटेजी बोलता हूँ कि टू गो टू द क्वेश्चन फर्स्ट, बट इन केस ऑफ इक्वलेंस इट बिकम्स फार इजी, बिकॉज देखो यहाँ पे अब मेरे पास पेयर क्या बन रहा था, एक ही पेयर बना है, तो मेरे लिए कितना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट? यहाँ पे और कोई पेयर नहीं बन रहा था. स्टिंजी के साथ आई हैव नॉट मेड फ्रूगल, राइट? वी हैव मेड फ्रूगल एंड थ्रिफ्ट, सिर्फ एक ही पेयर क्रिएट हो रहा है, तो मुझे पता है कि सिर्फ सी एंड एफ ही जाने वाला है. जस्ट टू इंश्योर दैट वी आर गोइंग करेक्ट, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस, सो इट बिकम्स इजी, राइट? इसलिए मैं कह रहा हूँ. लेकिन टेक्स्ट कंप्लीशन में ये स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी. टेक्स्ट कंप्लीशन में विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन विल कम टू द ऑप्शंस. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इक्विवेलेंस पे. अगेन लुक एट द ऑप्शन चॉइसेस. रिमूव्ड के लिए कोई आपको दिख रहा है ऑप्शन? रिमूव्ड. समृद्धि says B and E, which is sporadic and inconsistent. बहुत बढ़िया समृद्धि. आयुषी also says B and E. Sporadic is again something जिसकी जो ग्रोथ है बड़ी uneven ग्रोथ है, राइट? उसका जो फ्लो या ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट नहीं चल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है. तो फ्लक्चुएटिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्लक्चुएटिंग डेटा ग्राफ इज नोन एज स्पोरेडिक, राइट? अगर आपकी पॉपुलेशन स्पोरेडिक होके ग्रो कर रही है, स्पोरेडिकली ग्रो कर रही है, दैट मीन्स वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जा रही है, इसका कोई एक तय पैटर्न नहीं है. तो दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट. So you guys have rightly pointed it out that sporadic and inconsistent are pair. Yashvi also says B and E. रिमूव्ड के लिए आई डोंट सी अ पेयर. ब्लरी के लिए भी कोई पेयर नहीं है. ग्रैनुलर इज बेसिकली दैट समथिंग जो बहुत ही छोटा ग्रेन फॉर्म में होता है, समथिंग दैट कंसिस्ट ग्रेन्स या सैंड के छोटे से पार्टिकल्स जो कंटेन करता है, उसको हम ग्रैनुलर कहते हैं. विच अगेन इज नॉट रिलेटेड विथ एनीथिंग. इम्परसेप्टिबल. व्हाट इज इम्परसेप्टिबल? याद है किसी को? हाँ, समृद्धि इज राइट. ब्लरी एंड इम्परसेप्टिबल कैन बी पेयर, क्योंकि इम्परसेप्टिबल ऐसी चीज है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं. हाँ, नॉट एबल टू इंटरप्रीट, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड ब्लरी इज ऑल्सो समथिंग विच इज नॉट क्लियर. सो या, यू आर राइट. Blurry and imperceptible can be pair. And similarly, you have sporadic and inconsistent as pair. So let's look at the context, the sentence, what it is saying. For years, the satellite had sent back a stream of clear images of distant planets until only recently, when such transmissions became far more. Niharika is saying C and F. Rajat also says C and F. Devika says C and F. ठीक है. अब ये बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन इन द सेंस कि हम इमेजेस, आप लोग अभी क्लू किसको देख रहे हैं? इमेजेस को देख रहे हैं क्या क्लू?
if you're looking just at the clear image, right, अगर आप सिर्फ clear image को देख रहे हैं तो क्लियर इमेज को देखते हुए आपके ऑप्शन सही हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि इट शुड बी ब्लरी एंड इम्परसेप्टिबल, बट द ट्रिक व्हाट दे हैव डन इज दैट इन्होंने क्लियर इमेजेस वाली जो बात है ना उसको प्रिपोजिशनल रखा है. दे हैव क्रिएटेड अ प्रिपोजिशनल फ्रेज ऑफ दैट योर मेन सब्जेक्ट इज स्ट्रीम. Are you getting it? Stream of clear images. I'll give you another example to make you understand how these things they confuse you. ये थोड़ा सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट है. आप लोग ये एक नया सेंटेंस देखिए जो मैंने यहाँ पे अभी चैट बॉक्स पे आपके टाइप किया है. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू पिकनिक टुडे, राइट? अ लॉट ऑफ यू माइट थिंक कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के बाद आर आ जाना चाहिए, राइट? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पिकनिक टुडे. फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई आई एम क्लैरिफाइंग इट. यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट इज क्लास, इट्स नॉट स्टूडेंट्स, राइट? Of students is a prepositional phrase which is written with the main subject our class, right? तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पे is use किया है. A class is going to picnic today. This is I am not using for students. Of students is a preposition. Preposition आप लोग समझते होंगे क्या होते हैं, जो किसी चीज का पोजीशन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. Of, on, in, at, ये सब क्या होते हैं? All these are prepositions और इनके साथ कुछ लिखा होता है उसको हम prepositional phrase कह रहे हैं. तो of students is a prepositional phrase which is written with the main subject our class. So in this case I shouldn't be confused. I should be concentrating on my main subject to derive what should I be using as my verb. ठीक है, सिंगुलर यूज करें कि प्लूरल यूज करें तो our class is going to picnic today हो जाएगा, right? Similarly यहाँ पे a stream of clear images है. So should I be concentrating on clear images or should I be concentrating on a stream? स्ट्रीम पे मुझे कंसंट्रेट करना चाहिए, राइट? और अगर मैं स्ट्रीम पे कंसंट्रेट करूं तो वो कह रहे हैं कि पहले तो बड़ा कंसिस्टेंट स्ट्रीम आ रही थी, राइट? फॉर इयर्स द सैटेलाइट हैड सेंट बैक अ स्ट्रीम ऑफ क्लियर इमेजेस ऑफ डिस्टेंट प्लैनेट्स until only recently when such transmissions became far more what. अभी तक स्ट्रीम आ रही थी, दैट मींस एक रेगुलर फ्लो आ रहा था, एक रेगुलर फ्लो आ रहा था ऑफ इमेजेस. उसको इस तरीके से आप समझ लीजिए. Now this regular flow of images it has got disrupted and now images जो आ रही हैं उसका फ्लो कैसा है? स्पोरेडिक है, इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, तो ये थोड़ी सी कई बार ट्रिक्स यूज कर लेते हैं जिसके लिए आपको केयरफुल होना है. इफ आई गो विथ क्लियर इमेजेस I'll easily get confused and I can easily pick blurry and imperceptible which will be the wrong option choices. My main subject is a stream. So अगर मैं उस flow को देखूं तो correct choices मेरी sporadic और inconsistent हो जाएगी. Just one last question and then we'll start with our exercise. ये वाला आप लोग देख लीजिए, इसमें बहुत सारे वर्ड जो यूज हैं वो आपने रिसेंटली पढ़े हैं अपने वोकैबुलरी में. निहारिका सेज बी एंड एफ, बिल्कुल सही. इशिका बिल्कुल सही. अंशुल, श्रेया, स्तुति, अक्षत, प्रिंसी, you all are right. It should be protean and versatile. If you remember what protean, I told you there in mythology, Proteus god थे जो जब क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते थे so he used to change his shape. वो अपना शेप चेंज करने पे आ जाते थे. ठीक है, तो उसी से बना वर्ड है प्रोटियन. सॉरी. So somebody who changes his role and shape frequently and easily is protean, which is same as versatile. क्योंकि versatile भी बहुत सारे roles play कर सकता है. So protean and versatile can be pair. Expert का मुझे कोई और synonym यहाँ पे दिख नहीं रहा है related word. Haunting के लिए कोई और word नहीं है. Expert and efficient, रजत. जरूरी नहीं है. एफिशिएंसी हम किसी के काम करने की कैपेबिलिटी पे बताते हैं ना कि somebody can do same amount of work जो बाकी लोग 8 घंटे में करते हैं वो 5 hours में कर सकता है. तो this is what we define something as efficient, that he is more efficient than others, which cannot be same as expert. So expert and efficient I don't think they are related. Protean and versatile are related. Amenable का भी कोई यहाँ पे related word नहीं है. Amenable का मतलब क्या होता है?
एमनेबल इज जो इजिली परसुएड हो जाए. हाँ, compliant, right यशवी? Somebody who can be easily persuaded. If you are very amenable, तो आप में क्या क्वालिटी है कि आपके फ्रेंड्स आपको कभी भी परसुएट कर सकते हैं किसी चीज के लिए. ठीक है, इवन इफ यू आर एंग्री, इट्स वेरी इजी टू प्लीज यू. दैट मेक्स यू एमनेबल. ठीक है, ये एमनेबल एमनेस्टी से आया हुआ वर्ड है, तो रिमेंबर दैट. तो कंप्लायंट या जिसको मनाना बहुत आसान है वो एमनेबल है. लेट्स लुक एट द कंटेक्स्ट. अब यहाँ पे बहुत इजी है, आपके पास एक ही पेयर है, तो आप कंटेक्स्ट ना भी बहुत ज्यादा समझ पाए तो आप उस पेयर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि और कोई वर्ड यहाँ पे ऑप्शंस में आ नहीं रहा है. अ consummate technical wizard at piano, Franz Liszt was so dash as to be able to faithfully mimic the playing of others that Chopin once exclaimed that he thought his own ghost was at the keys. So faithfully he can mimic the playing of others. So versatile है वो. If he can mimic exactly how the other people are playing, so he can mold himself into other people. So it could be protean and versatile. That should be the answer. ठीक है, चलिए आज के एक्सरसाइज पे हम लोग आ जाते हैं अब सेंटेंस इक्विवेलेंस के ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स पे. नई स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, सो फ्यू कैटेगरीज मैंने बनाने की कोशिश करी है और इसके वर्ड्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद हेट के वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं. राइट आयुषी, abhor is a good word. loath बिल्कुल ले सकते हैं. loathsome भी बोलते हैं. loath and loathsome. just a moment. अर्पित कुछ पूछना है आपको? आपका रेज हैंड दिखा रहा है स्क्रीन पे. चलिए आ जाते हैं क्या क्या वर्ड्स आप लोग बता रहे हैं. abhor, somebody suggested Ayushi. Niharika says loath. Shreya says loath. Ayushi says odious. odious रख सकते हैं बिल्कुल. odious. Yashvi, good word. detest. You detest someone. If you hate them, you can use this word detest. And even Princey, what she has, despise करना किसी को. detest and despise are very good terms. You would like to say some, किसी को बोलने हैं आपको you hate them, you can say detest. ठीक है, आप ऐसा सोचो किसी चीज का डिटेस्ट याद रखने के लिए मैं आपको एक निमोनिक बता रहा हूँ कि आपको किसी चीज का टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, डी टेस्ट कर रहे हो. ऑल्दो ये सब स्पेलिंग अलग है, टेस्ट और टेस्ट की स्पेलिंग अलग है. ये एक निमोनिक आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप डिटेस्ट कैसे ध्यान रख सकते हैं. डिस्पाइज बोलते हैं, बिल्कुल सही प्रिंसी. श्रेया, एनिमोसिटी, राइट. किसी से दुश्मनी के लिए एनिमोसिटी इज वर्ड. हॉस्टाइल भी है जो सबसे ऊपर मैंने लिखा है कैटेगरी में, हॉस्टाइल भी है. रजत सेज एवर्जन, बिल्कुल सही रजत. यू डोंट लाइक समबडी, वो आपके लिए एवर्जन हो जाते हैं, आप उनसे दूर रहना चाहते हो, यू ट्राई टू अवॉइड देम. इनमिकल, हॉस्टाइल के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं. इशिका. तन्वी सेज एंटाईपैथी, बिल्कुल सही तन्वी. एंटाईपैथी यानी किसी से अपोजिट फीलिंग रखना. पैथी इज फॉर फीलिंग एंड इमोशंस, एंड एंटाई है तो जस्ट अपोजिट फीलिंग है आपकी. ठीक है, किसी से जस्ट अपोजिट आपकी फीलिंग क्रिएट हो रही है. डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल ह्यूमन. डेस्पिकेबल समृद्धि पर गिरी हुई कैटेगरी में आ जाता है ना, जो बेस वाले वर्ड्स होते हैं. बोल सकते हो आप, दैट इज ऑल्सो हेट्रेड है, लेकिन डेस्पिकेबल पर्सन इज गिरा हुआ आदमी. बोलते हैं ना बेस, वो गिरी हुई कैटेगरी में आ जाएगा. डिबॉचर, मॉरली करप्ट, वो वाली कैटेगरी में उसको रख लेंगे हम लोग. ठीक है, अभी
हेट वाले वर्ड्स पे हम लोग आ जाते हैं. कंटेम्पचुअस को इंसल्टिंग में रख लें रजत. एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज फॉर पर्सन रिलेशनशिप के लिए यूज कर सकते हैं, और वो रिलेशनशिप जब खराब हो जाती है उसके लिए यशवी अबोमिनेट कर सकते हैं. बिल्कुल अबोमिनेट. रिजेंट करना भी बोलते हैं. समथिंग यू रिजेंट इज, जिससे आप अवॉइड कर रहे हो. ऑब्नॉक्शियस देविका बिल्कुल यूज कर सकते हो. ऑब्नॉक्शियस, यू डोंट लाइक समबडी, दे बिकम ऑब्नॉक्शियस फॉर यू. एक्रीमोनियस श्रेया बिल्कुल सही. एक्रीमोनियस रिलेशनशिप कैसी होती है, जो बिटर हो गई है. सॉरी, एक्रीमोनियस इज रिलेशनशिप जो खराब पड़ चुकी है. पीविश एनॉयंस के लिए रख लेंगे देविका इस वर्ड को हम लोग. एनाथीमा सोर्स ऑफ पीपल हेट बिल्कुल रख सकते हैं. ग्रूसम वगैरह यशवी थोड़ा अलग कैटेगरी पे चले जाएगा, वो अलग पे रख लेंगे हम लोग. तो ये सारे वर्ड्स हैं. आई जस्ट चेक, मैं एक बार अपनी लिस्ट भी चेक कर लेता हूँ इन विच आई हैव रिटन मोर वर्ड्स. अगर कोई मिस हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ. डिस्पाइज वी हैव टेकन, एक्रीमोनियस वी हैव टेकन. ठीक है, हम लोगों ने मोस्ट ऑफ दी. डिस्गस्ट लिख सकते हो रजत, बिल्कुल कर सकते हो. डिस्गस्ट इज सिमिलर टू डिस्पाइज. किसी चीज को डिस्गस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स वो चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. तन्वी मिसएंथ्रोप लग सकते हो, जो दूसरे ह्यूमंस को पसंद ही नहीं करता है, दैट मेक्स हिम मिसएंथ्रोप्स. आई टोल्ड यू. फॉर्मिन या थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाएगा. फॉर्मिन होता है जिसमें आप किसी के गुस्से को उकसाते हो, दैट इज फॉर्मिन, राइट. किसी के गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को उकसाना इज फॉर्मिन देयर ओपिनियन अबाउट समथिंग, फॉर्मिन देयर एंगर अबाउट समथिंग. ठीक है. मिसएंथ्रोप फिर भी रख सकते हैं, क्योंकि मिस इज फॉर हेट, तो मिसएंथ्रोप जा सकता है somebody who hates other people. शिवांग, आज और क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग. आज हम लोग सिर्फ यही कैटेगरीज करने वाले हैं, खत्म. ठीक है. क्वेश्चन में एक बार कैटेगरीज सारी खत्म हो जाएगी, देन विल बी डूइंग ऑल दोस क्वेश्चंस. हाँ रजत, सही कह रहे हो. लोथ का LOATHE होगा. ठीक है. तो ये सारे वर्ड्स आपके हेट या हॉस्टिलिटी के लिए यूज हो जाते हैं. कभी भी किसी, कोई आपका दुश्मन है या हेट है, तो उसके लिए सारे वर्ड्स यूज हो जाएंगे. सिर्फ इनका कंटेक्स्ट अलग अलग हो जाता है, राइट. abhor, detest, odious. Odious is similar to obnoxious, right? If something is odious, it's basically repulsive. उसको देख के ही आप दूर रहना चाहते हो, right? It's disgusting. तो ये सारे वर्ड्स हेट और हॉस्टिलिटी के लिए चले जाएंगे. नेक्स्ट कैटेगरी पे चले जाते हैं हम. टू इम्प्रूव समथिंग. जस्ट अ मोमेंट. ठीक है. अब कोई सिचुएशन खराब है, उसको अच्छे करने वाले वर्ड्स पे हम लोग आ गए हैं. ठीक है. कुछ बुरा हुआ है, उसको अच्छे करने के वर्ड्स क्या क्या होते हैं. पैसिफाई, राइट. मॉलिफाई, एमेलियोरेट. रजत सेज एमेलियोरेट, विच इज करेक्ट. पैसिफाई प्रिंसी बिल्कुल सही है. अपीज करना इशिका बिल्कुल बोलते हैं. ठीक है. अपीज, अपीज इज बेसिकली कहीं पे किसी सिचुएशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. द न्यू पैक्ट इज ट्राइंग टू अपीज द रूइंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज. एक नया पैक्ट हुआ है, इट इज ट्राइंग टू अपीज द रूइंड रिलेशनशिप. जो रिलेशनशिप खराब हो चुकी है, सार हो चुकी है, उसको अच्छा करने की कोशिश की जा रही है. सो एमेलियोरेट बिल्कुल आयुषी. देविका से स्पेसिफाई. तन्वी मिटिगेट बिल्कुल लिख सकते हैं. देविका से प्लकेट, राइट. प्लकेट इज कोई आपसे रूठ गया, आप उसको मना रहे हो, दैट इज यू आर ट्राइंग टू प्लकेट देम. योर पेरेंट्स आर एंग्री ऑन यू, यू ब्रिंगिंग देम सम गिफ्ट इज ट्राइंग टू प्लकेट देम, ट्राइंग टू मेक देम लेस एंग्री. अले बहुत अच्छा वर्ड है. यस अक्षत, लेनिफाई भी रख सकते हैं. सॉरी. देन मिटिगेट, अपीज. यशवी सेज प्लकेट, बिल्कुल प्लकेट रख सकते हैं.
निहारिका प्रोपिशिएट रख सकते हैं। ठीक है, प्रोपिशिएट का कंटेक्स्ट ध्यान रखना, मोस्टली कहाँ पे काम आता है, जब हम ट्राइंग टू, आप गॉड को मनाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज प्रोपिशिएट। ठीक है, यू थिंक दैट गॉड इज एंग्री ऑन यू फॉर समथिंग, जितनी हम पूजा यज्ञ ये सारी चीजें करवाते हैं, दैट इज टू प्रोपिशिएट गॉड, टू मेक देम लेस एंग्री, टू मेक देम हैप्पी, टू प्लीज देम, दैट इज प्रोपिशिएटिंग। आयुषी, वेरी गुड। असौज, असौज कैन बी यूज्ड। अंडरमाइन कर देना अंशुल, अंडरमाइन तो गलत हो जाएगा। अंडरमाइन तो किसी की ऑथोरिटी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देना या वीकन कर देना होता है। शिवांग, पेसिफाई इसलिए होता है कि जब खराब सिचुएशन होती है तो हम हमेशा पेसिफाई यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू वैक्सीन फॉर कोविड विल पेसिफाई, द सिचुएशन, इट विल इम्प्रूव, इट विल काम डाउन द सिचुएशन। जो एक पैनिक चल रहा है ना अभी, वो पैनिक कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई हम पेसिफाई को यूज करते हैं। ठीक है, आप किसी को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। और क्या वर्ड्स हैं? यस यशवी, इमेनिसिपेट बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इमेनिसिपेट। आयुषी, पैलिएट बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कंसिलिएट श्रेया यूज कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। Just a moment. Yeah. So conciliate is word which Shreya is suggesting, which can be used. Aswaj we have already taken, Muskan. ठीक है, अबेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अबेट भी किसी चीज की इंटेंसिटी को लेसन करना ही होता है। So अबेट can be taken. Alleviate, good word, Princey. We missed alleviate. To alleviate is also किसी खराब सिचुएशन को अच्छा कर रहे होते हो। ठीक है, जो अभी गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ फाइनेंशियल पैकेज, राइट, a bailout package for industries that can alleviate their problems. They can alleviate, they can make their problems go away, so that is alleviate. Reconcile बोल सकते हैं। अंशुल, wholesome क्यों यूज करना चाहते हो? Salutary and wholesome। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपके यूज हो सकते हैं when you are trying to calm down something। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लिस्ट में अगर कोई वर्ड हमारा रह गया है तो। सूद एक सिंपल वर्ड रह गया है, सूद लिख लीजिएगा। सूद इज ऑल्सो अ सूथिंग इफेक्ट जो हम लोग कहते हैं, तो दैट सूद कैन गो ओवर हियर। Another good word we have missed is just a moment. Palliate, I think we have taken. Conciliate, we have taken. Ameliorate is done. Propitiate is done. ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो आपके रिलेटेड है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाइए, विच इज बेसिकली इसका जस्ट उल्टा है, वर्सन कर देना किसी सिचुएशन को। जस्ट अ मोमेंट। अब वर्सन वाले हम लोग टर्म्स कर रहे हैं जिसमें हम किसी खराब सिचुएशन में और कुछ खराब हो चुका है वैसा बता रहे हैं, या कोई ठीक सिचुएशन थी वो वर्स हो चुकी है, उसके वर्ड्स पे हम लोग आ रहे हैं। राइट इशिका, इशिका सेज इट शुड बी exacerbate, बिल्कुल सही। exacerbate कैन बी यूज्ड। aggravate, बिल्कुल सही निहारिका। एग्रावेट काफी अच्छा टर्म है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जब किसी सिचुएशन को खराब करने की बात आए तो आप एग्रावेट बोल सकते हैं, राइट। डिटेरियोरेट, बिल्कुल सही मुस्कान। श्रेया सेज एस्ट्रेंज, बिल्कुल एस्ट्रेंज यहाँ यूज कर सकते हैं आप, जो पहले मेरे ख्याल से हेट पे आपने या किसी ने सजेस्ट किया था। सो एस्ट्रेंज कैन बी यूज्ड हियर। एन एस्ट्रेंज रिलेशनशिप इज, आपने सुना होगा कई बार कि फादर एंड सन दे हैव अ वेरी एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कैसी हो गई है, रोइंड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, स्पॉइल हो चुकी है, दैट इज एस्ट्रेंज्ड। इम्बिटर भी होना बोलते हैं, तो इम्बिटर इज ऑल्सो अ वर्ड विच यू कैन यूज। डिग्रेड भी बोल सकते हैं प्रिंसी। एबेसिमल, एबेसिमल तो खुद ही पुअर होता है अंशुल। इफ समथिंग इज एबेसिमल, इट इट विद इन इटसेल्फ इज पैथेटिक, राइट। आप किसी को खराब कर नहीं रहे हो, आप खराब हो ही चुके हो, राइट। If you're calling something as abysmal performance, it's a very pathetic or hopeless performance. Alienate, attenuate weaken के लिए हो जाता है तन्वी, तो वर्सन में रख सकते हो आप, ठीक है। To weaken something के लिए you can keep attenuate. शिवांग, मुझे समझ नहीं आया क्या पूछ रहे थे आप। If you can put up your question once again. I couldn't get it what exactly you were asking. रफल बोल सकते हैं हिबा, बिल्कुल रफल्ड अप या रफल्ड। अंडरमाइन कर देना, वीकेंड कर देना बोल सकते हैं यहाँ पे, वी कैन यूज वर्ड अंडरमाइन। एक्सक्रीबल, एग्जास्परेट मुस्कान हो चुका है। एक्सक्रेबल वी कैन यूज। इरोड, विसिसिट्यूड, चेंजिंग। विसिसिट्यूड का हिबा बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है, आप ध्यान रखना कि किसी के सर्कमस्टांसेस बुरे के लिए चेंज हो जाना, ठीक है। तो यू कैन राइट दैट एज सिनोनिम, बट उसका बड़ा स्पेसिफिक यूसेज होगा जब किसी के सर्कमस्टांसेस ऐसे बदले हैं that it goes for something worse. So it is related to worsen वाली कैटेगरी, बट उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो आप ध्यान रखिएगा। डिस्पोंडेंट आयुषी, सैडनेस की कैटेगरी में, वर्सन की कैटेगरी में उसको नहीं आना चाहिए आयुषी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वर्सन के भी सारे वर्ड्स वी हैव डन। I'll just have a look if we have missed some words. Exacerbate we have done. Aggravate, deterioration. I think alienate somebody has suggested, but I haven't written yet. Just a moment. Depreciate बोल सकते हैं यशवी। हाँ, dilapidate बोल सकते हो सत्यम, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। dilapidated कंडीशन में किसी का होना यानी बुरी कंडीशन है, दैट इज अगेन सिमिलर टू abysmal कंडीशन। सो dilapidated, abysmal, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं, बहुत ही खराब कंडीशन में होना। मैं अभी सिर्फ वो वाले वर्ड्स पे अपन लोग बात कर रहे हैं जिसमें कोई चीज खराब होती जा रही है। कुछ फ्रेजेस होते हैं जो यूज होते हैं, आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ। गोइंग डाउन द ट्यूब्स, if something is going down the tubes, again it is going for worse. वो एग्रावेट हो रही है, एक्सासरबेट हो रही है, खराब होती जा रही है। सो गोइंग डाउन द ट्यूब्स इज अ फ्रेज विच मीन्स समथिंग सिमिलर, किसी चीज का खराब होना। गोइंग डाउन हिल भी बोलते हैं।
गोइंग डाउन हिल, गोइंग साउथ, ये सब फ्रेजेस यूज होते हैं ऐसी ही किसी चीज को बताने के लिए जब कुछ खराब हो रही है। तन्वी, एनर्वेट और फीबल ये सब यहाँ पे नहीं रखते हैं अपन। ठीक है, ये एनर्जी वाले वर्ड्स हैं, वीक वाले वर्ड्स हैं, इसको वहां पे यूज करेंगे अपन। ठीक है, ये बड़ी स्पेसिफिक कैटेगरी उस पे है जब सिचुएशन में और कुछ खराब हो गया है। ठीक है, जैसे स्ट्रेंज एक रिलेशनशिप का खराब हो जाना, एम्बिटर भी आपका रिलेशनशिप का खराब हो जाना होता है। तो ये सारे उसी के वर्ड्स हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू वर्सन। बोरिंग नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं। इसके काफी वर्ड्स आप लोगों को पता है मेरे ख्याल से ऑलरेडी। लेट्स लुक एट व्हाट वर्ड्स कैन बी कॉल्ड फॉर बोरिंग। दिस इज द लास्ट कैटेगरी विल डू टुडे। नेक्स्ट मैं आपके बाकी सेशंस में कंप्लीट करवा दूंगा। राइट समृद्धि, इट कैन बी सेड प्रोजेक एंड मंडेन, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था प्रोजेक वर्ड कम्स फ्रॉम प्रोज स्टाइल, राइट। प्रोज याद रखिएगा आप, इफ समथिंग इज रिटन इन प्रोज स्टाइल, वो कैसी है, बड़ी डायरेक्ट है, उसमें कोई रिदम और पोएम नहीं है, तो इट कुड बी बोरिंग। सो दैट्स व्हाई प्रोजेक इज समथिंग व्हिच इज डल, अनइमेजिनेटिव, बोरिंग। सो प्रोजेक लिख सकते हैं, मंडेन भी ले सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट टर्म समृद्धि, बिल्कुल सही, एवरीडे। Everyday ka I've told you there could be two spellings for everyday. This, the first one and this one, they both have different meaning and are used in different ways. वो आप ध्यान रखिएगा. This everyday is when we are talking about I go to school every day, I go to office every day. So this is the everyday you're using. But the first everyday, which we are using as a synonym for boring, is something that we are doing on everyday basis. For example, I can say you guys are the everyday people I'm meeting. So रोजमर्रा जो हम हिंदी में कहते हैं, that is this everyday. ठीक है, these are everyday tools that we are using in our work. So everyday tools यानी वो tools जो आम tools हैं जो हम रोज के basis पे use कर रहे हैं, तो this is that everyday, you can use it. Then Shreya has suggested bromid, right? Anshul has suggested mundane, बिल्कुल अंशुल यूज कर सकते हैं, ब्रोमेड आ जाएगा यहाँ पे। ट्राइट आ जाएगा आयुषी, बिल्कुल। ट्राइट इज अगेन समथिंग which is very obvious remark, right? There's nothing new about it. Trite, banal, banal, banal is also boring. Pedestrian अंशुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, pedestrian. सोपोरिफिक बोरिंग के लिए ठीक है शिका, पर बोरिंग से ज्यादा वो क्या है आपको याद होगा कि उसको सच में नींद आ जाए, राइट? इफ यू आर कॉलिंग अ लेक्चर एज सोपोरिफिक, सो इट्स अ लेक्चर विच विल इंड्यूस स्लीप, सो ऑब्वियसली इट इज बोरिंग एंड इट इज ब्रिंगिंग, पर इसमें एक स्लीप का मीनिंग और जुड़ा हुआ है, वो ध्यान रखिएगा। टायरेट बोल सकते हैं देविका, बिल्कुल। वैपिड आयुषी, नॉट श्योर अबाउट दी वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा है वैपिड, आपको पता हो आप मीनिंग बता देना यहाँ पे। प्लैटिट्यूड वी कैन यूज तन्वी। Platitude is again for something which is boring, repetitive. Quotidian समृद्धि बिल्कुल रख सकते हैं। Quotidian concerns are everyday concern, जो रोज के बेसिस पे हो रहे हैं उनको हम quotidian concern बोलते हैं। मुस्कान, platitude we have already covered. निहारिका, per functory बिल्कुल यूज कर सकते हैं। per functory is a task जो आप कर तो रहे हो पर आपका मन नहीं लग रहा है उसको करने में, so you're doing it just from the outside. So that is a perfunctory thing. Cliche भी बोलते हैं, right? Cliche is again something which is boring and repetitive. बहुत ज्यादा repetitive है, इस कारण से boring है। Like cliched plots होते हैं movies के अंदर। So cliched plots क्या होते हैं? वही घिसा पिटा dialogue, घिसा पिटा plot, वही story जो हर बार repeat की गई हो, cliche हो जाएगा। बिल्कुल स्तुति, monotonous भी बोल सकते हैं। monotonous क्योंकि एक जैसा चलता है, that's why it can become boring at one point of time. अक्षत, perfunctory we have already covered. आयुषी, इंसिपिड भी बोरिंग के लिए बोल सकते हैं हम, ठीक है। टेस्टलेस और बोरिंग दोनों होता है वो। लैकिंग फ्लेवर, तो मोस्टली फूड और टेस्ट के लिए ज्यादा यूज होता है इंसिपिड। मुस्कान, बहुत अच्छा वर्ड, हैकनेट, हैकनेट रिमार्क, राइट। हैकनेट स्टार्ट ऑफ स्पीच,
So that is again a very cliched way of starting things. आयुषी, lackluster, tedious भी बोल सकते हैं स्तुति, बिल्कुल. Rajat, trite we have already covered. Good suggestion. Garden variety, Muskan. If something is garden variety, it is again every day. For example, a technician. Somebody comes to your house who is a technician for repair of your air conditioner. He'll have his garden variety tools. उसके पास वो जो हर टेक्नीशियन के पास सारे टूल्स होते हैं, वो सब आपको एक टेक्नीशियन के पास मिल जाएंगे. तो वो आम टूल्स हो गए, इसलिए हम उसको गार्डन वैरायटी कहते हैं. जजून स्तुति बिल्कुल बोल सकते हैं. जजून इज डल बोरिंग. Rajat, bromide we have already taken. Cliche also we have taken. Prolixity बोल सकते हो, पर prolixity boring क्यों है आप लोग ध्यान रखना. If something has prolixity, why is it boring? Because it has too many words. बहुत सारे words use किए हुए हैं, इस कारण वो verbose हो गई है. Tedious to read और understand हो गया है. Old hat बोल सकते हैं मुस्कान, लिख सकते हैं आप old hat. ठीक है. Threadbare in fact is a word which we can use. Threadbare. रजत, कुटोडियन बिल्कुल यूज कर सकते हैं. यशवी, ट्राइट यूज कर सकते हैं. पेडेस्ट्रियन, हैकनेड. हमड्रम सैडनेस को ज्यादा डिफाइन करता है रजत. मोनोटोनस वो फिर सैड की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है. आयुषी ने जो वर्ड सजेस्ट किया था उसका मीनिंग डल है. ठीक है आयुषी. लोक्वेशियस देविका यहाँ पे मत लाओ. ठीक है. वो सारे वर्ड जो आप बोल रहे हो, प्रोलेक्स, लोक्वेशियस, वो सब एक कैटेगरी है, उसको हम करेंगे जिसमें यू से अ लॉट एंड यू मेक लिटिल सेंस. ये आपकी स्पीच फुल ऑफ वर्ड्स होती है और बोरिंग टू अंडरस्टैंड है, वो उसके कैटेगरी में हम वर्ड्स ले लेंगे. लोकेशियस. आयुषी ने वेपिड बताया है जो कि डल होता है. विल ऐड दैट टू द लिस्ट. मोनोटोनस हो गया है. सेंटेंशियस. श्रेया, व्हाई यू वुड लाइक टू कीप सेंटेंशियस ओवर हियर? सत्यम स्टॉजी. स्टॉजी का मीनिंग सत्यम आई एम नॉट क्लियर. आई एम श्योर नहीं हूँ. ठीक है. ड्रैब इज डल, लैकिंग कलर, लेस्टर. ठीक है. तो ये मेनली सारे ये वर्ड्स आपके हो जाएंगे जो बोरिंग डिस्क्राइब करते हैं. कोई चीज बोरिंग है, रिपीटेटिव है, वो आपका रूटीन हो सकता है, वो कोई स्टोरी हो सकती है, वो किसी का बोलने का तरीका हो सकता है, वो किसी के रिमार्क्स हो सकते हैं. टीचर्स राइटिंग इन योर एग्जामिनेशन वेरी गुड इज व्हाट? अ वेरी trite remark. There's nothing new about it. All teachers, they write in same way. When they have to appreciate, they just write very good. So there's nothing new about that. सेंटेंशियस में मॉरली दूसरों को सुनाते हो ना, वो मीनिंग है उस पर. बोरिंग से ज्यादा सेंटेंशियस इज मॉरल बखान करना लोगों को, मॉरल चीजों का. ठीक है. तो आई थिंक वी हैव एग्जॉस्टेड द लिस्ट ऑफ बोरिंग आल्सो. लेट मी हैव अ लुक इफ वी हैव मिस्ड अ वर्ड. मंडेन वी हैव कवर्ड, राइट? मंडेन सेकंड पे आ गया था. Prosaic we have done. Quotidian is done. Threadbare is there. Perfectly. I think we have covered all the words which are related with boring. ठीक है. तो ये इतनी लिस्ट आप लोग कोशिश करिएगा अपनी रिवीजन करने की या याद रखने की कि ये सब रिलेटेड वर्ड्स हैं. रिलेटेड वर्ड्स का कभी भी मतलब ये नहीं है कि दे ऑल कैन गो इन द सेम कंटेक्स्ट. ये ध्यान रखिएगा. इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. मैं जहाँ इनिमिकल यूज कर सकता हूँ वहां मैं एक्रीमोनियस यूज नहीं कर सकता, वहां मैं ऑब्नॉक्शियस यूज नहीं कर सकता. इनमें थोड़ा थोड़ा यूसेज का डिफरेंस रहेगा जो कि आपको टेक्स्ट कंप्लीशन में बहुत काम आएगा. टेक्स्ट कंप्लीशन कॉन्सेंट्रेट्स मोर ऑन यूसेज ऑफ द वर्ड्स. वहां पे हो सकता है कि एक ही ब्लैंक के लिए एनिमिकल भी दिया हो आपको और एक्रीमोनियस भी दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमिकल कहाँ सकता है, एक्रीमोनियस कहाँ सकता है. एंड मोर रीडिंग विल ऑब्वियसली हेल्प यू. यस अंशुल, एक बार ये पूरी शीट कंप्लीट हो जाएगी ना तो मैं इसको ऐप पे कर दूंगा, या मैं आज के तो कर ही देता हूँ आपको. एटलीस्ट आप लोगों को रिवीजन करने के लिए इजी हो जाएगा. जितने ये वाले वर्ड्स हैं मैं चैट बॉक्स पे ही पेस्ट कर देता हूँ अभी, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. और एक बार ये पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी तो मैं उसका वर्ड फाइल आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. ठीक है. 3-4 कैटेगरीज ऐसी और बची हैं, वो आपकी कंप्लीट हो गई तो आपका काफ़ी सारे रिलेटेड वर्ड्स आपको पता चल जाएंगे.
ठीक है, यू वांट यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और एक बार पूरा शीट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसकी फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। देविका, इट्स इजी फॉर यू टू नो व्हाट इज द मीनिंग बट आई फाइंड हार्ड टू रिकॉल। देखो रिकॉल पता है देविका कैसे होते हैं, देविका इज आस्किंग मी क्वेश्चन दैट व्हेन शी सीज अ वर्ड शी नोज द मीनिंग ऑफ दैट, बट शी मे बी व्हेन शी वांट्स टू यूज इट शी डजंट रिकॉल इट एट द मोमेंट। तो वो रिकॉल एबिलिटी देविका कब आती है कि जब हम इन वर्ड्स को फ्रिक्वेंटली यूज करने लगे। जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल की परफंचरी आपने किसी से 2-3 बार बोल दिया, राइट, ये यूज कर लिया आपने किसी से बात करने में, या इन राइटिंग समथिंग यू हैव यूज द वर्ड परफंचरी, ये आपको बाद में याद रह जाएगा। ठीक है, आपको रिकॉल भी होने लगेगा, जब आपको यूज करना होगा तो ये वर्ड नेचुरली आपको याद आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू यूज इट। तो तरीका वही है कि इन्वॉल्व दीज वर्ड्स इन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड दैट्स हाउ योर रिकॉल एबिलिटी वुड कम। और मोर रीडिंग से भी रिकॉल होता है आपका। आप जितनी रीडिंग करोगे और जितने आर्टिकल्स में आपको ये वर्ड दिखते जाएंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिकॉलिंग द वर्ड्स। तो ये एक तरीका है रिकॉल करने का। निहारिका, आई डिसाइड इट एंड आई लेट यू नो। मैं ग्रुप पे ये पोस्ट कर दूंगा कि फ्राइडे को आपकी ये क्लास रहेगी इक्विवेलेंस की, या वो जो टेस्ट मैंने आपको बताया वो रहेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। So I hope the session was helpful. I'll see you guys day after tomorrow again. It could be test or I'll be continuing with the same thing. We'll be doing categories of words जिसमें हम लोग ये complete करेंगे. Then we'll start with the sentence equivalence practice exercises. Right? चलिए, I'll see you guys on Friday then. Thank you everyone.